اور نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ کاظمی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن ٹریبیونل نے حلقہ پی پی بددرست کر دیے۔ چودھری پرویز الہی کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواستیں مسترد۔ جسٹس ریٹائرڈ محمود مقبول باجوہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چودھری پرویز الہی نے موسیٰ الہی اور کیسرا الہی نے صالح حسین کی کامیابی کو چیلنج کر رکھا تھا۔ اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کریں کہ الیکشن ٹریبیونل نے حلقہ پی پی 32 اور NH 64 میں انتخابات درست قرار دے دیے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور کے الیکشن ٹریبیونل کے ریٹائرڈ جسٹس محمود مقبول باجوہ نے پرویز الہی اور کیسرا الہی کی جانب سے دائر انتخابی وزرداریوں سے متعلق تمام دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ ٹریبیونل نے پی پی 32 گجرات اور NH 64 کے دونوں حلقوں کے الیکشن کو درست قرار دیتے ہوئے پرویز الہی اور کیسرا الہی کی انتخابی وزرداریاں خارج کر دی ہیں اور اس حوالے سے عدالت نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے۔ عدالت کے روبرو پرویز الہی اور کیسرا الہی کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس سے متعلق الیکشن کمیشن نے حقائق کے برعکس دونوں امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کیا اور اس حوالے سے دھاندلی کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ عدالت ان دونوں حلقوں کے کامیابی کا نوٹیفکیشن قلعدم قرار دے۔ جی محمد اشفاق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے ڈپٹی کمشنرز کو روٹی مہنگی کرنے کی درخواست۔ 14 روپے میں روٹی کی فروخت ممکن نہیں، درخواست کا مطلب۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کی درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 500 روپے اضافہ ہوا۔ آٹا سستا نہ کیا گیا تو مجبوراً روٹی مہنگی کی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ نے نئے ریٹس کا اطلاق کرے۔ آپ کو بتائیں کہ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کی ڈپٹی کمشنر کو روٹی مہنگی کرنے کی درخواست۔ 14 روپے میں روٹی کی فروخت ممکن نہیں، درخواست کا متن۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کی درخواست میں مزید کہا گیا کہ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 500 روپے اضافہ ہوا۔ آٹا سستا نہ کیا گیا تو مجبوراً روٹی مہنگی کی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ نے نئے ریٹس کا اطلاق کریں۔ آپ کو ہم خبر دیں کہ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کی ڈپٹی کمشنر کو روٹی مہنگی کرنے کی درخواست۔ 14 روپے میں روٹی کی فروخت ممکن نہیں، درخواست کا متن۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کی درخواست میں مزید کہا گیا کہ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 500 روپے اضافہ ہوا۔ آٹا سستا نہ کیا گیا تو مجبوراً روٹی مہنگی کی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ نئے ریٹس کا اطلاق کرے۔ اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کریں کہ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کی ڈپٹی کمشنر کو روٹی مہنگی کرنے کی درخواست ہے۔ 14 روپے میں روٹی کی فروخت ممکن نہیں، درخواست کا متن۔ سستا آٹا فراہم کرنے سے فلور ملوں کے انکار پر حکومت کا رد عمل سامنے آ گیا۔ سیلاب کی آڑ میں آٹے اور روٹی کے لیے کنٹرول اور سپلائی برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے گندم کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے پیرا فورس کو ٹاسک دے دیا۔ گندم کو فیڈ ملوں میں استعمال کرنے پر پابندی یقینی بنانے کا فیصلہ۔ روٹی کی قیمت 14 روپے اور آٹا بیگ کا نرخ 1800 سے نہ بڑھنے دیا جائے۔ ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی گاٹھیا کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے گنڈا سنگھ بگالا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ ملی ہے۔ چناب میں مرالہ پر پانی میں کمی آ رہی ہے اور پانی اب چنیوٹ برج اور ہیڈ تریمو کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران پی ڈی ایم میں پنجاب کے ڈی جی عرفان علی گاٹھیا نے بتایا کہ اس وقت دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,25,000 کیوسک ہے اور انڈیا کی طرف سے بھی ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ ملی ہے۔ ستلج میں صورتحال کے پیش نظر ملتان میں ہیڈ محمد والا پر تمام ادارے موجود ہیں۔ بریچنگ کی صورت میں 26 گاؤں اور 30,000 افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ آج ہمیں پھر فارملی جو کراس بارڈر انٹیمیشن ہے ریگارڈنگ ہری کے اور ڈاؤن سٹریم ان گنڈا سنگھ ہائی فلڈ کی وہ وارننگ ملی۔ اس وقت گنڈا سنگھ پہ ہمارے پاس تقریباً 3,25,000 کیوسکس کا ایک سسٹینڈ وہ فلو چل رہا ہے۔ تقریباً 27 معاوضہ جات ایسے ہیں کہ جو اس میں متاثر ہو سکتے ہیں، جو شیرشاہ کے اور 35,000 آبادی ہے جو میں آپ سے پہلے بھی فگر شیئر کر چکا ہوں کہ جو خدا نخواستہ متاثر ہو سکتی ہے، جس میں 7,000
कंस्ट्रक्टेड यूनिट्स हैं, घर हैं। इरफान अली काठिया ने मजीद बताया कि गुज़श्ता 48 घंटे में दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,05,000 क्यूसिक हो गया है। पानी चनाब में जाने तक रावी में पानी का बहाव फिर बढ़ रहा है। टोबा टेक्सिंग और खानेवाल में सूरत हाल खराब है और वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। इस वक्त लाहौर शाहदरा के मुकाम पर एक दफ़ा फिर पानी 50-60 हज़ार से फिर 1,05,000 क्यूसिक्स के करीब इस वक्त चल रहा है, और ये पानी आगे उन मिजरीज़ को और उन परेशानियों को दोबारा बढ़ाएगा जो इस वक्त बैक वाटर इफ़ेक्ट के तहत हेड सदनाई के ऊपर हमें टोबा टेक्सिंग और खानेवाल में जिस सिचुएशन का सामना है। डायरेक्टर जनरल PDMA ने बताया कि पंजाब में 3,900 गाँव मुतासिर हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। दरियाए रावी में पानी की आमद में इजाफा होने लगा। पानी की सतह 60,000 क्यूसिक से बढ़कर दोबारा 90,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। पानी की मौजूदा मिकदार शाहदरा और गिरदोनवाह के लिए खतरनाक नहीं, ताहम मजीद बारिशों से पानी की सतह बढ़ने का खदशा मौजूद है। मजीद सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए रावी में चंद रोज़ जो गुजरे हैं उसमें कुछ ठहराव और सुकून नज़र आ रहा था, लेकिन एक मरतबा फिर दरियाए रावी अंगड़ाई लेता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह ये बयान की जा रही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार के जो बलाई इलाके हैं दरियाए रावी के, वहाँ पर बारिशें होने की वजह से दरिया में पानी की सतह बुलंद हो रही है। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। ताज़ा तरीन जो शाहदरा की सूरत हाल है, जहाँ पर तकरीबन 5 से 6 रोज़ कबल 2,19,000 क्यूसिक फुट पानी गुजरा था, वहाँ पर इस वक्त 90,000 क्यूसिक फुट के करीब पानी गुजर रहा है, जबकि गुज़श्ता रोज़ ये तकरीबन 55 से 60,000 क्यूसिक फुट तक रह गया था, लेकिन इसके बाद इसमें इजाफा हुआ। इसकी वजह यह है कि जसड़ के मकाम पर जहाँ से ये दरिया पाकिस्तान में एंटर हो रहा है, वहाँ पर पानी की मकदार में इजाफा हुआ और वहाँ पर भी इस वक्त तकरीबन 82,000 क्यूसिक फुट के करीब पानी वहाँ से दरिया रावी में आ रहा है, जो कि आगे दरिया रावी साइफन पर तकरीबन 91,463 क्यूसिक फुट के करीब पानी पहुंच रहा है, जबकि शाहदरा में तकरीबन 90,500 क्यूसिक फुट के करीब पानी पहुंच रहा है। इसी तरह आगे बल्लोकी के मकाम पर पानी की मकदार ज़्यादा है, वहाँ पर तकरीबन 1,18,000 क्यूसिक, जबकि सदनाई पर इससे भी ज़्यादा पानी मौजूद है, 1,42,000 क्यूसिक। इस वक्त भी यही सूरत हाल है, गो के 90,000 क्यूसिक फुट है, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है, लेकिन ये इजाफा कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा जो कि ख़तरनाक कहा जा सके या इंतहाई बुलंदी की तरफ जाता हुआ नज़र आ सके। इस वक्त जो दरियाए रावी की सूरत हाल है वो आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं कि ये वो शाहदरा का पुल है, जहाँ पर इस वक्त तकरीबन 90,000 क्यूसिक फुट पानी गुजर रहा है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो इंतहाई सतह जिस दिन 2,19,000 क्यूसिक फुट पानी था, तो इस सतह से तकरीबन 4 से 5 फुट ऊपर पानी गुजर रहा था और ये पुल बिल्कुल पानी से भरा हुआ था। अब जो पार्ट है दरिया का वो भी काफ़ी हद तक कई जगह ऐसी हैं जो कि खाली हो चुकी हैं। और ये सामने शाहदरा की आबादी है, आप देख सकते हैं कि शाहदरा की आबादी की तरफ भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। जो फरखाबाद और दीगर इलाके हैं वो उसकी तरफ पानी अब नहीं टकरा रहा, बल्कि बारादरी के दूसरी तरफ से होता हुआ पानी गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। मजमूई तौर पर दरियाए रावी में इस वक्त किसी तशवीश की सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जैसे मानसून का स्पेल लंबे होते जा रहे हैं, अगर बलाई इलाकों में बारिशें मज़ीद होती हैं, पानी मज़ीद आता है, तो उससे लाजमी तौर पर दोबारा दरियाए रावी में कोई तुगयानी की सूरत पैदा हो सकती है। ताहम इस तक मजमूई तौर पर हालात कंट्रोल में हैं। जी जाहिद आबिद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ का वीएन सैलाब ज़दगान की दहलीज पर बुनियादी सहूलियात के फराहमी का मिशन। टीचिंग हस्पतालों की 109 मेडिकल टीमें सैलाब ज़दगान को तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक। मेडिकल कैंपों में हज़ारों सैलाब ज़दगान को तिबी सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। मोबाइल टीमों में डॉक्टर्स, गायनाकोलॉजिस्ट, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और रसाकार शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन है सैलाब ज़दगान की दहलीज पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को मुकम्मल किया जाए, जबकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन से मुंसलिक टीचिंग अस्पतालों की 109 मेडिकल टीमें पहले दिन से सैलाब ज़दगान की सहूलत की खातिर फील्ड में मुतहरिक हैं। मेडिकल कैंप्स के जरिए अब तक हज़ारों सैलाब ज़दगान को तिबी सहूलियात की फराहमी भी की जा चुकी है, जबकि मोबाइल टीमों में फिजिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, MO, WMO, स्टाफ नर्स समेत पैरामेडिकल स्टाफ और गायनेकोलॉजिस्ट के समेत जो रज़ाकार हैं ये भी शामिल है। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब ज़दगान को मेडिकल कवर देने के लिए तिबी माहिरीन
खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और मुश्किल के इस वक्त में मेडिकल कम्युनिटी भी सैलाब ज़दगान के शाना बिशाना जंग लड़ रही है, जबकि मेडिकल कैंप्स में एंटी स्नेक वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए अद्वियात की फराहमी भी की गई है। और सैलाब ज़दा इलाकों में डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटाइटिस, हैजा और जिल्द के अमराज से बचाव की अद्वियात की फराहमी को भी मेडिकल कैंप्स में यकीनी बनाया जा रहा है। और सैलाब ज़दा इलाका जात में लोगों की रहनुमाई के सहूलत का काउंटर्स भी कायम किए गए हैं, जबकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने तमाम वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और जी मोहम्मद बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चंद सदियां पहले दुनिया में बादशाहतें कायम थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में शौक पैदा हुआ, आवाम को एहसास हुआ कि हमें अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। आज के दौर में 3 किस्म की हुकूमतें पाई जाती हैं। लोकल गवर्नमेंट आवाम की खिदमत के लिए होती है। पब्लिक वेलफेयर हुकूमत का सबसे बड़ा फ़र्ज है। हम बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट से महरूम हैं। लोगों को हकूक नहीं मिल रहे, इख्तियारात निचली सतह तक ना गए तो मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। तारीख़ ये हमें बताती है कि आज से 200-250 साल पहले भी अगर आप देखें तो दुनिया में बादशाहतें कायम थी। फिर इंसानियत ने एक करवट ली, अवाम में ये शऊर पैदा हुआ कि ये बादशाह हमारी जान को भी इस्तेमाल करते हैं और हमारे माल को भी इस्तेमाल करते हैं। आज की मॉडर्न दुनिया में 3 किस्म की हुकूमतें आम तौर पे मुल्कों में पाई जाती हैं। पब्लिक वेलफेयर है, ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ है हर हुकूमत का। लोकल गवर्नमेंट वो हुकूमत है जो आपकी खिदमत करने के लिए है। हम बदकिस्मती से उस टीयर से महरूम है, हमारी कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है। आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो चुकी है। मगरबी पाकिस्तान बना तो उसकी आबादी 3 करोड़ के करीब थी। फैसलाबाद को नया सूबा बनना चाहिए। 33 नए सूबे बने तो नई लीडरशिप सामने आएगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एपसेप सेमिनार से खिताब। बोले, पंजाब आबादी के लिहाज से 3 सूबों से बड़ा है। पंजाब की आबादी 53% है, वसाइल भी इतने चाहिए। पंजाब को बाकी सूबों से बेहतर हुक्मरान मिले। गलतियों को दूर नहीं करेंगे तो कभी मंजिलों तक नहीं पहुंचेंगे। और आज पाकिस्तान की आबादी आपके सामने है, तकरीबन 25 करोड़ हम हो चुके हैं। अगर हम 1951 में हमारी पहली मरदमशुमारी हुई, फर्स्ट सेंसस जो हमारा था वो 1951 में हुआ। उस वक्त पाकिस्तान की, पूरे मगरबी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, उसकी आबादी 33 मिलियन थी, 33.7 मिलियन आप समझ लें आबादी थी। तो हम जो तजवीज़ करते हैं, हम कहते हैं फैसलाबाद को अलग सूबा बनाएं, यहाँ पे इसकी अपनी असम्बली हो, इसका अपना चीफ मिनिस्टर ये लोग इलेक्ट करें और इसमें फैसलाबाद शामिल हो। आपको एक लीडरशिप मुयस्सर आए। 33 सूबे पाकिस्तान में बने तो 33 चीफ मिनिस्टर आपको मिलेंगे। हम एक फेडरेशन है कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी तीनों से बड़ा है, और ऐसी दुनिया में कोई फेडरेशन दूसरी नहीं है जिसका एक इंतज़ामी यूनिट बाकी सब इंतज़ामी यूनिट को मिला के भी उनसे बड़ा हो। क्योंकि 53% आबादी का सूबा 53% के वसाइल भी पर भी हक रखता है। और कुछ हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें बाकी सूबों से बेहतर हुक्मरान मिले हैं, तो हम थोड़ा बाकी सूबों से बेहतर भी हैं। लेकिन उसका नुकसान हमें यह है कि बाकी तीनों सूबे हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करने के रवादार नहीं हैं। आज मुल्क में लोग भूखे सो रहे हैं। 44% बच्चों की नशोनुमा रुक चुकी है। जब इदारे कमज़ोर हों तो करप्शन जन्म लेती है। हमें ऐसी लीडरशिप नहीं मिली जिसमें आवाम का दर्द और काबिलियत हो। मुल्क की बेहतरी के लिए छोटे इंतजामी यूनिट ज़रूरी हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। बोले, सियासतदानों के लिए नैब और जेलें कोई सज़ा नहीं है। सियासतदानों को सबसे बड़ी सज़ा उसका वोटर दे सकता है। आज हम मुसलमान होने के बावजूद, इस्लामी मुल्क होने के बावजूद 109वें नंबर पे हैं भूखे लोग रखने के। हमारे लोग भूखे सोते हैं, भूखे रहते हैं।
स्टंटिंग ग्रोथ होती है बच्चों की। 44% बच्चे हमारे स्टंटिंग ग्रोथ कर रहे हैं। 44%, तकरीबन आधे बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही। जब आपके इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं तब करप्शन जन्म लेती है। और हमने ये अभी जितने भी इंडेक्सेस मैंने आपके सामने पढ़े हैं उसमें ये चीज़ साबित हो रही है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस वीक हो गए हैं। और इसलिए वीक हो गए हैं कि वो इतने बड़े हैं कि उनको कंट्रोल अब किया ही नहीं जा सकता। जो सूबा 2 करोड़ से शुरू हुआ था वो 13 करोड़ पे पहुंच गया। जो मुल्क 3 करोड़ से शुरू हुआ था 25 करोड़ पे पहुंच गया। सियासतदान के लिए ये नैब और ये अदालतें और ये जेलें और ये चीज़ें, ये कोई सज़ा नहीं है सियासतदानों के लिए। आप देखें 3-4 साल गुजरते हैं, आपने कुछ भी किया, आप फिर पाक साफ होके आते हैं। और आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में पाकिस्तान की पहली ट्रांसपोर्ट एक्सपो का इनेकाद। मास ट्रांजिट सिस्टम इलेक्ट्रिक ट्राम को एक्सपो में पेश कर दिया गया। एक्सपो में स्टॉल्स के जरिए पंजाब में 2030 तक ट्रांसपोर्ट में आने वाली इस्लाहात से मुतल्लिक मालूमात फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। पाकिस्तान की पहली ट्रांसपोर्ट एक्सपो का इनेकाद एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में हुआ। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की तरफ से बाकायदा तौर पर इस एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया गया है। और इस एक्सपो की अहम बात यह है कि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं। और ख़ास तौर पर जो इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है उसके फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स निजी कंपनियों की तरफ से भी लगाए गए हैं। और जो पंजाब हुकूमत की तरफ से इलेक्ट्रिक बसों का इनिशिएटिव लिया जा रहा है उसके हवाले से भी इस एक्सपो में आगाही दी जा रही है। इस एक्सपो की अहम बात यह है कि यहाँ पर कोई भी शख्स बगैर किसी फीस के, बगैर किसी एंट्री फीस के यहाँ पर आ सकता है। और जो पंजाब हुकूमत 2030 तक पूरे पंजाब को एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट करने जा रही है उसके ऊपर आकर इस्तेफादा कर सकता है। इस एक्सपो की अहम बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो पहली इलेक्ट्रिक बस है वो भी यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी गई है। ये वो इलेक्ट्रिक बस है जिसको अभी तवक्को की जा रही है कि मुख्तलिफ जो रूट्स हैं उनके ऊपर चलाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर हरबंसपुरा से ठोकर न्याज बेग और ठोकर न्याज बेग से फिर हरबंसपुरा तक ये ट्रेन है। इस ट्रेन के जो तमाम फीचर्स हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, जो कि अभी 1100 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं पंजाब में चाइना से, उनकी भी जो यहाँ पर नुमाइश है उसके लिए रख दिया गया है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो ई टैक्सी सर्विस मंसूबे का आगाज किया जा रहा है उसकी जो मॉडल कारें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक्सपो का जो बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। कल 5 सितंबर शाम तक ये जो एक्सपो है ये जारी रहेगी और इसमें लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो मालूमात है वो फराहम की जाएगी। ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पंजाब की खवातीन का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद करवाने का फैसला। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास में पिंक गेम्स के इंतजाम का जायज़ा। खेलता पंजाब पिंक गेम्स में 3000 से ज़ायद खवातीन खिलाड़ी शरीक होंगी। सूबाई वज़ीर की अक्टूबर के आखिर में खेलता पंजाब पिंक गेम्स का शेड्यूल मुरतब करने की हिदायत की गई। आपको बताएं कि पंजाब की खवातीन का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद करवाने का फैसला सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास में पिंक गेम्स के इंतजाम का जायज़ा लिया गया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर में योम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। तलबा ने जोश जज्बे के साथ वतन अजीज़ के शुहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में तलबा ने ड्रामाई अंदाज में अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों को उजागर किया। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में मौजूद हूँ। योम दिफा की मुनासबत से आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें पंजाब कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ड्रामाई अंदाज में जो है वो पाक फ़ौज को खराज अकीदत भी पेश किया गया। मेरे साथ यहाँ पर सीनियर प्रिंसिपल सरवत हसन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी मैम, बताइएगा आज ड्रामाई अंदाज में बच्चों ने जो है वो खराज अकीदत पेश किया है पाक फ़ौज को, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने यहाँ पे तमाम बच्चों की तरफ से यौम दिफा पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने का एहतमाम किया।
ایکچولی یہ دن اس لیے منائے جانے چاہیے تاکہ ہماری نئی نسل کو پتہ چل سکے کہ کتنے قربانیاں ہمارے شہداء نے دی ہیں اس ملک کی خاطر. آج اگر ہم یہاں پہ محفوظ ہیں تو اسی لیے کہ ہماری سرحدوں پہ یہ لوگ موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ شہداء کے پیرنٹس موجود ہیں, شہداء کی بہن موجود ہیں, اور ان لوگوں نے آ کے ان بچوں کو جس طرح سے یہ تمام تفاصیل بتائیں, اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بتائے, تو بچوں نے ان کو بہت اچھے طریقے سے سنا اور اپریشیٹ کیا. اور مجھے یقین ہے کہ یہاں سے جس حد تک وہ یہ انسپریشن لے کے جائیں گے, یہ چیزیں آگے ان کی نسل کو مزید سنواریں گی, ان کے لیے ان کی تربیت میں یہ بہترین حصہ ادا کریں گی. اور بچوں نے اپنی سی بہت کوشش کی. انہوں نے تمام کیمپسز نے پاکستانی افواج کو ریپرزینٹ کیا اور وہ اسی حوالے سے بہت خوبصورت پراپس بنا کے لائے. اسی فوج کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہ تمام اپنے ساتھ جو چیزیں لے کر آئے, جس سے انہوں نے اپنے جذبے کا بھرپور اظہار کیا. آج بالکل جہاں پہ اسٹوڈنٹس نے اپنے جذبے کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے, میرے ساتھ یہاں پر عظیم والدین بھی موجود ہیں اور بہن بھی موجود ہے شہید کی. میرے ساتھ شہید کی والدہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی میم بتائیے گا کیا جذبات ہیں, کیا لمحات ہیں, یا آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پنجاب کالج نے ارینج کیا اور ہمیں بلایا, ان کا شکریہ. اور بچوں میں جو جوش و خروش آپ بھی دیکھ رہی ہیں, جذبہ ہے, اور لوگوں نے جس طرح تیاری کی ہے اور جو پراپس بنا کے لائیں, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں میں ایک بہت زیادہ کب سے صبح کے آئے بیٹھے. تو اور یہ کہ انہوں نے ہماری باتوں کو بڑا اچھا سنا. ہمارا تو یہی میسیج ہے کہ اگر ہمارے بچوں نے قربانیاں دی ہیں تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بچوں کو چاہیے کہ آگے اس ملک کے لیے وفاداری کے ساتھ رہیں, آنیسٹی کے ساتھ رہیں, اور جہاں جہاں جس فیلڈ میں ہیں اس کو آنیسٹی کے ساتھ چلائیں. تو بس ہمارا ملک پہ ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اگر ہم یونٹی کے ساتھ رہیں گے تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جی بالکل, ان کی جانب سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ایمانداری کے ساتھ رہیں گے اور ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک کی حفاظت کریں گے تو ہمارا جو ملک ہے وہ ضرور کامیاب ہوگا.